Good morning, Bhumika. चैतन्य पच भाई. Good morning, sir. Good morning, बेटा. Yes. Pooja Vidate. Good morning. Sir. Good morning. Okay, just a minute. Dear students, okay. Shubham Dhali. Shubham Dhali. Yes, sir. Shubham, there is one student, okay, a new student joined our class. His name is Yogesh Patel, okay. So I need a favor from you. Shubham, are you listening? Yes, sir. Kindly share the YouTube link, okay, and the link of the other subject teachers in Teachment app for him. समझ में आया? Yes, sir. हाँ, सो जो टीचमेंट ऐप है, अभी इस क्लास के बाद में जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनकी जो यूट्यूब लाइव क्लासेस हैं, उसके लिंक या जो टीचर्स के टीचमेंट लिंक है, वो सब जो है टीचमेंट पे चैट बॉक्स में शेयर कर देना, ठीक है? हेलो शुभम. Sir, in teachment chat box. अरे हाँ बेटा, इन टीचमेंट चैट बॉक्स. Okay, sir. समझ में आया? Yes, sir. हाँ, थोड़ी आवाज निकालो भाई. सुबह सुबह क्या हो रहा है? सो के उठे हो क्या? नहीं सर, वॉकिंग करके आया हूँ. अच्छा, ठीक. योगेश पटेल. Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. थोड़ा सा वॉइस लेवल इंक्रीज करो. आई एम नॉट एबल टू लिसन क्लियरली. Good morning, sir. Sir, am I audible? Yes. Okay. Please switch on your video also. Good. So Yogesh Patel, you are the new student in Manikgarh Cement, or earlier you was studying somewhere in Manikgarh Cement itself? No, sir. Actually, my father was working at Maihar Cement. Right now, I am at Maihar. So I will come to Manikgarh on September first week. Okay. So right now your father was working in Maihar Cement, Satna. Yes, sir. In Madhya Pradesh. And now your father has switched over the job to Manikgarh Cement. Yes, sir. Ultratech. Okay, Ultratech. Is it on Ultratech Manikgarh, na? Yes, sir. Okay. So right now you are living in Satna. Yes, sir. I am currently at Maihar. You are currently living at Maihar. Yes, sir. Okay. ठीक है. So when will you be coming here? Sir, in September first week. In September first week. So your admission processes are completed? Yes, sir. Okay, fine. So वो भजन गा के बताओ, मैहर वाला. कौन सा सर? मैहर की शारदा भवानी. Sir, I don't know. अच्छा, you don't know. So you are not a native of Maihar also, I think. No, sir. My native place is Raipur, Chhattisgarh. Raipur, Chhattisgarh. Okay. So have you visited the Maihar temple? Yes, sir. अच्छा, ropeway is working over there or not? Sir, yes, sir. Ropeway is working, na? Yes, sir. You can also go through roads. अच्छा, road is also there from the Yes, foothill up to the top. Yes, sir. Okay, so ropeway is available and roadway is also available. Yes, sir. Okay, good. ठीक है. You can switch off your video, okay? And audio also need to be switched off, okay? Once you complete your
interaction. Got it? Yes. हाँ ठीक है. Switch off both. Thank you. And he is going to share on teachment. Okay? ठीक है? Yes. Fine. Thank you, Yogesh. And thank you, Shubham Dali. And I think rest of these friends have also joined the class. Okay. So without wasting any time, let us proceed to the section which we have completed. Okay. Yogesh Patel, for you, okay, the chapter may be new. So you continue from where we were right now. Okay. And if you have any doubt, so whenever I get an extra time, I will help you out at least for this chapter, okay? And rest of the things we'll manage slowly. Got it? Yes, sir. Okay, thank you, thank you. Sir, when you will send question and answer? Which chapter, beta? Sir, chapter 1 civics. Chapter 1 civics. Just a minute, Sandhya. Wait for a minute, huh? Sandhya? Yes, But I will sir. send it. Okay, I will send it today itself, just after this class. Okay. Okay, sir. Sir, Ah, so you didn't send us that Samvidhan first episode link also. pardon, please. Sir, Yes, beta. Samvidhan first episode. Samvidhan videos. Yes, sir. Now all of you are using YouTube channel. All of you are watching on YouTube, na? Yes, sir. Yes, sir. So on that YouTube, okay, in search option, you need to just type Samvidhan by Shyam Benegal. What you need to type in search screen? Yes, someone's mic is on. Shubham Dali. Beta, what would you like to say? शुभम, हाँ तो फिर स्विच करो ना, वो तुम्हारे घर की आवाज इधर आती है फिर. अभी और किसी का माइक भी ऑन है? बेटा देखो, हम लोगों को लगभग 1.25 महीना हो गया है ना, more than 1.5, in fact 2 months working on teachment. Okay, so now we must be habitual of using it properly so that we would be able to communicate through the voice interaction and there won't be any disturbance. ठीक है? तो जैसे ही अपनी बात खत्म हो जाती है, आप अपना ऑडियो स्विच ऑफ कर लिया करो. ओके, चलिए. सो यस, योर क्वेश्चन वाज देयर, है ना?
all the students, whenever you people are free, okay, YouTube का ये सर्च वाला ऑप्शन है ना, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो इस ऑप्शन में आपको सिर्फ इतना टाइप करना है, ओके? संविधान बाय श्याम बेनेगल, ओके? ना ये आपको टोटल आर्काइव ओपन होगा। आर्काइव से सेंस ये है कि दिस इज ए सीरियल एंड इट हैज हाउ मेनी एपिसोड्स बेटा? 10. 10. Got it? Now, so within 1 month, 1 महीने का समय है। In this 1 month period, whenever you people are free, okay, in your leisure, kindly watch the episodes of this television serial. Okay, it is a very old television serial. And why I am telling you, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है संविधान, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रकार से कहना चाहिए कि ये चैप्टर हम जिस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने का या एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को हमारे सिलेबस में क्यों रखा है, उसका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो किसके जरिए फुलफिल होता है? इस टेलीविजन सीरियल के जरिए फुलफिल होता है। ठीक है, यानी आप यदि इस पूरे सीरियल को ओनली 10 एपिसोड्स आर देयर आप देखेंगे तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत 1946 में हुई थी, परंतु उससे पहले की कौन कौन सी घटनाएं थी, इंसिडेंट थी, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. ओके, सो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस थी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? यहां तक बात आ रही है समझ में? ठीक, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग थी, उस मीटिंग की जो एंटायर प्रोसीजर है, किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, दैट इज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बोला, क्या लॉजिक पेश किए, तो ईच एंड एवरीथिंग इज रिक्रिएटेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये कुल मिलाकर जो पूरे के पूरे 10 एपिसोड्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने की जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको रिक्रिएट करते हैं। वही की वही चीज एक टेलीविजन सीरियल के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो सीरियल है, ये देखना सभी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So once we will be in a condition to complete our syllabus, यदि हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करने की कंडीशन है तो हम लाइव क्लास में भी ये देख सकते हैं, बट आई वांट दैट इंस्टेड ऑफ दैट ऑल ऑफ यू शुड वॉच इट ऑन YouTube. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, so that's all for this, है ना? इतना लॉजिक आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। सो अभी हम आगे आते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कहीं ना कहीं हमने सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सो वी वर समवेयर ऑन दिस सेक्शन। Sir, that number of members in constitution.
Just a minute. Were we on somewhere this section? Yes, sir. On the number of members in constitution. Fine, Up fine. to every year complete. Thank you, Peter. Thank you, Sandhya. Okay, so the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members, है ना? जो Constituent Assembly थी that wrote the Indian Constitution has 299 members. Okay, so earlier in this chapter we already discussed that the Constituent Assembly was also divided along with the division of India into two countries, India and Pakistan. Okay, so after the division of the Constituent Assembly, how many members were left with India? 299 members. Okay, now dear students, in this chapter we will be having number of figures, okay, which are very important for the purpose of general knowledge, as well as if any one of you would like to attempt for the government jobs and services entrance examinations, okay, what we normally call as the different competitive examinations. So even in the MBA entrance examination, जो MBA के entrance examination होते हैं, उसमें जो general awareness, that is what known as a general knowledge का जो question paper आता है, that also contains lot of questions from political science. Okay, so these are some of the important figures. Okay, so please underline these figures in your textbook and learn by heart also. Okay, well, so the assembly adopted the constitution on 26th of November 1949. That is, the finalization work of the constitution was over and it was adopted कि हाँ भाई final हो गया, अब हम इसको ready accept कर लिया. It was accepted, adopted on 26th of November 1949. But it came into effect on 26th of January 1950. कब effect में आया? 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. ठीक है? So इस दिन को हमने adopt, implement कब किया? 26 January 1950. So we celebrate 26 January 1950 as a Republic Day. Okay. Now, so that is what the preliminary part of Constitution. Now the next thing that we are going to discuss is a question which is being posed, है ना? अगली चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस प्रश्न के बेस पर, why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago, है ना? जब ये टेक्स्ट बुक लिखी गई थी ये 2010 के आसपास का एडिशन होगा, तो इन्होंने लिख दिया 6 decades ago. ठीक है? अब as on today we are in 2021. Okay, so it is 70 decades, 70-71 साल से ज्यादा हो गए. तो प्रश्न ये उठता है कि 71 years में बहुत कुछ चेंज हो गया. 71 years में बहुत कुछ चेंज हो चुका है ना? जब मैंने 2011 में अंबुजा ग्रुप ऑफ स्कूल ज्वाइन किया था तो मेरे पास में मोबाइल फोन भी नहीं था. आई डिड नॉट हैव इवन द क्वालिटी कीपैड फोन. बात समझ में आ रही है? और आज हमारे पास 10 साल के अंदर इतने हाईटेक मोबाइल फोन्स हैं कि हम लोग हमारा सारा का सारा एक्टिविटी बैंकिंग से लेकर रेलवे रिजर्वेशन से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग वी आर एबल टू डू ऑन मोबाइल फोन. तो 10 साल में इतना कुछ बदल चुका है, बदल गया. तो फिर हम ये 70 साल पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को एज इट इज एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? हम उसी पुराने कॉन्स्टिट्यूशन
और वो कितना ओल्ड है? 71 ईयर्स, है ना। तो 10 सालों में इतना कुछ बदल गया और हम वही 71 ईयर्स पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या कर रहे हैं? अपने कंट्री को रन कर रहे हैं, हम इस देश में रूल कर रहे हैं। ओके, तो सवाल ये उठता है कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट दिस मच ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन? यस, प्रज्वल पानघाटे, प्रज्वल, यस प्रज्वल, संध्या, Yes, sir. हाँ, my voice is coming ना बेटा? Yes, sir. Okay, thank you. Would you like to ask any question? Sir, in my book there are some changes, like it is printed on like 2015. So there are like, here it is 6 decades and in mine it is 50 years ago. Somewhat differences are there. So Beta, the things it will not doesn't mean affect now. it is not going to affect anything. सीधा हिसाब है कि when it was adopted On 26 November 1949. 1949 and implemented 1950, है ना. So we can directly calculate 71 years back. Okay, got it? Yes, sir. Well, so the constitution does not reflect the views of its member alone. अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना हुआ है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहीं ना कहीं, है ना, somewhere all those rules and regulations are made according to the opinions and views of the members of the Constituent Assembly. Now, total how many members were there? 299. But the Constitution does not have only the views of the Constitution does not have only the views of these members. Okay. In fact, the Constitution expressed a broad consensus of its time. What does it mean? Okay, ये लाइन सिर्फ ये कह रही है कि कहने को उसमें टोटल कितने थे? 299 मेंबर्स थे, परंतु ये 299 मेंबर्स, these 299 members of the Constituent Assembly were the representatives of the different caste and different groups of people living in our country. ठीक है, ये हमारे कंट्री में जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, उन लोगों को क्या करता है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव ने अपने जो व्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पुट किए, वो किसके कॉमन व्यू थे? दोज वेर द कॉमन व्यूज, दोज वेर द कॉमन व्यूज ऑफ द, दोज वेर द कॉमन व्यूज ऑफ द all the people to whom our representatives were representing, है ना. जैसे मान लो आसाम से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, आसाम से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव क्या थे? मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो भी डिबेट और डिस्कशन किया, वो उनका अकेले का व्यू नहीं था, इट वॉज द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ आसाम। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, सो ब्रॉड कंसेंसस का मतलब होता है कि जो डिबेट और डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुए, वो डिबेट और डिस्कशन सिर्फ वो 299 मेंबर्स के व्यू नहीं थे, इट वेर द व्यूज ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सिद्धक कौर, यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir.
Okay, Yogesh Patel, did you understand only this section? Yes, sir. Okay, well, so many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. Okay, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें कई बार ये देखा गया है कि वर्ल्ड की बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्रेश नए तरीके से लिखना पड़ा बिकॉज द बेसिक रूल्स वेर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जो बेसिक रूल्स थे कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, किस तरीके से लोगों को बेसिक मतलब फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये जो बेसिक रूल थे कि हमारा कंट्री किस प्रकार का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगा, तो वो जो बेसिक रूल्स थे वो कंट्री के सारे सिटीजन्स ने एक साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहां तक बात आई समझ में? ओके, इसलिए उन कंट्रीज को क्या करना पड़ा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाना पड़ा। ठीक, इन सम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मेयर पीस ऑफ पेपर। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है एप्लीकेबल के लिए नहीं है, हाँ भाई लिख दिया खत्म काम, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं। ठीक है, नो वन एक्चुअली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, हु हैज स्विच्ड ऑन द ऑडियो? यस, सृष्टि। गुड मॉर्निंग सृष्टि। Good morning, sir. You have joined right now, beta? No, sir. Okay, then would you like to say something? No, sir. By mistakenly it on. Okay, okay, fine. Thank you. Switch off. So the experience of our constitution is different. मतलब वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में या तो they have to write their constitution again, or okay, there are many countries in the world where the people are even not following the constitution. Okay, now that did not happen in case of our country India. Okay, over the last half a century, that is, here they are writing for half a century, but we can calculate it is the 71 years of period. So from the last 71 years, okay, number of group of Indian population questioned some provision of the constitution. ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी चैलेंज नहीं किया। चैलेंज से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस से सेटिस्फाइड नहीं है। पीपल वेर नॉट सेटिस्फाइड विद मेनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Sometimes the question raised, sometimes the challenges are there. Okay, this provision is not proper. Okay, you people, that is the constitution is talking about the freedom and equality, but in real sense, there are many instances where this freedom and equality is violated. तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पर, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस पे तो सवाल उठते हैं क्योंकि कभी-कभी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। ओके, परंतु हमेशा ऐसा होता हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए कभी-कभी कुछ कंडीशंस में कॉन्स्टिट्यूशन के लेजिटिमेसी पर सवाल उठते हैं, परंतु कभी भी पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को गलत नहीं ठहराया गया। ठीक है, सो पीपल आर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन
कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, समटाइम्स an incident took place where some of the provisions are under question, are under scrutiny of the people. Okay, now that is what an unusual achievement for any constitution. So world के दूसरे countries के comparison में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कभी भी 100% रॉन्ग नहीं ठहराया. All the governments in our country, all the political parties, whether they were the ruling parties or the opposition parties, everyone accept the provision of the constitution. K.R. Reddy? Yes, sir. Is it clear up to this section? Yes, sir. Divyanka, is it clear up to this section? Yes, sir. ओके, ठीक है. सिद्धिका हनुमंते? नो डाउट. हीरक तिवारी? Yes, sir. Any doubt there? No doubt, sir. Okay, thank you. Thank you. Well, so we'll proceed to the next paragraph. The second reason for accepting the constitution is that the Constituent Assembly represented the people of India. है ना? हम हिंदुस्तान में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही अपने सारे कंडक्ट चलाते हैं. क्यों? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इट represented the people of India. There was no universal adult franchisee at that time. ठीक है? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय पर, यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड में, there was no universal adult franchisee. कंट्री के सारे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था. So, the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. ठीक है? इसलिए जो Constituent Assembly के मेंबर्स चुने गए, तो Constituent Assembly के मेंबर्स को चुनने में कंट्री के सारे सिटीजन्स ने वोट कास्ट नहीं किया. यानी जैसा आज की तारीख में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, तो जब आज एज ऑन टुडे यानी कंटेम्पररी टाइम पीरियड में जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है? ऑल द एलिजिबल वोटर्स ऑफ आवर कंट्री आर कास्टिंग द वोट. आज जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारे कंट्री में जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो लोग क्या करते हैं? वोट कास्ट करते हैं. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. तो हम कह सकते हैं कि आवर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय अस. हमारे रिप्रेजेंटेटिव को किसने इलेक्ट किया? हम सभी ने इलेक्ट किया. ठीक है? ये कंडीशन कब नहीं थी? व्हेन द इलेक्शन टुक प्लेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस थे वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में हुए थे और उस समय पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसी कोई व्यवस्था ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट नहीं करी थी. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. ओके. Yes, sir. यानी जो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे दे वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली. उनको क्या किया गया था? इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट बेटा.
बेटा हमारा जो मैक्सिमम अटेंडेंस था वो 59 के आसपास था, है ना? हाउ मच? 59 स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट ऑन 16th of July, ठीक है? और एज ऑन टुडे कल की जो अटेंडेंस आ रही है 7th of August की, वो 48 आ रही है। ने आज 9 से ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, विच इज अ वेरी पैथेटिक कंडीशन, ओके? और ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग जो है बेफिक्र हो गए हैं। आई विल स्टार्ट कॉलिंग एट योर होम नाउ, ओके? आज ही आप सभी के घरों में फोन कॉल जाने वाला है that why your child is not attending the class, ठीक है? Sir, I am attending ना. हाँ, तो those who are not attending ना, I'll call to their parents, Yes, sir. okay? हाँ सर हाँ बेटा। सर जो भी लॉज होते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। देखो बेटा, हमारा हिंदुस्तान किसके हिसाब से चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो इस कंट्री को चलाने के जितने भी नियम कानून हैं वो सब कहाँ पर लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हैं। परंतु जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें क्रिमिनल केसेस की, क्रिमिनल केसेस मालूम है क्या होते हैं? यस सर। वेरी गुड। तो जब कोर्ट ऑफ लॉ, अदालत जो होती है, तो कोर्ट ऑफ लॉ यानी अदालतों में जो मुकदमे चलते हैं, वेदर इट इज ए क्रिमिनल केस और मे बी इट इज ए सिविल केस, तो इसके जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं, इसके जो डिफरेंट प्रोविजंस यानी एक प्रकार से कह लें नियम या लॉ, वो जो हैं वो एक सेपरेट बुक में लिखे होते हैं जिसको बोला जाता है इंडियन पीनल कोड। क्या बोला जाता है? व्हाट सर? इंडियन पीनल कोड। क्या बोला जाएगा? इंडियन पीनल कोड। ठीक है। अब वो जो इंडियन पीनल कोड है उसमें एक्चुअल में होता क्या है? तो वो जो सारे के सारे सिविल केसेस से रिलेटेड नियम हैं, है ना, उनके प्रोविजंस किसमें लिखे होते हैं? उस डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक में लिखे होते हैं। अब हिंदुस्तान में बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, तो अब हर एक डिपार्टमेंट के नियम कानून यदि संविधान में लिख दिया जाए तो ना जाने कितनी टेराबाइट की हमें हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी। यानी सवाल हार्ड डिस्क खरीदने का नहीं है, सवाल ये है कि संविधान में ये सब लिखना पड़ेगा। तो उसके बजाय उसमें क्या लिख दिया? फॉर एन एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द सिविल कोड द डिसीजन आर टू बी टेकन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। मेरी कही गई बात आई समझ में? तो अब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडियन पीनल कोड के हिसाब से इस प्रकार के केसेस का डिसीजन होगा। यानी अब आपको क्या रेफर करना है? इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड रेफर करना है, ठीक है? सर लाइक एक बार कोई भी बुक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी प्रिंट हो जाती है तो उसमें अगर कैसे कुछ चेंजेस लाने हैं तो फिर वापस वो छोटे से चेंज के लिए रीप्रिंट पूरी होगी? बेटा देखो क्या होता है कि उसको दोबारा रीप्रिंट किया जाता है। क्या किया जाता है? रीप्रिंट। अब उसमें भी क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंटल प्रोसीजर है, जिस प्रोविजन में चेंज हुए हैं ओनली उतने पेज को चेंज कर दिया जाए, है ना? ओके सर। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना रिकॉर्ड मेंटेनेंस हमेशा रखती है। गॉट इट?
Yes, sir. Okay. So, yes, thank you. So that's all for today's live class, friends. Okay, because Excuse me, sir. please. Sir, Indian Constitution is the longest constitution, na? Indian Constitution is the largest constitution in the world in terms of number of provisions, number of articles, and the number of pages it has taken to do the writing work. ठीक है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं ना, टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स होते हैं. Yes, sir. तो इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल्स हैं. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के मामले में, हर एक कंडीशंस को क्लियरली लिखने के मामले में, यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. सर, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल रूल्स रहते हैं, तो अगर ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो वो हटाए जा सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लाया जा सकता है? बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और कुछ एक जनरल सिस्टम है ना. अब जनरल सिस्टम को थोड़ा सा आसानी से हटाया जा सकता है, जनरल सिस्टम को आसानी से हटाया जा सकता है. ओके, परंतु यदि बेसिक प्रोविजंस हैं तो उनको हटाने की प्रोसीजर कैसी है, काफी लॉन्ग है और डिफिकल्ट है. समझ में आ रहा है? ओके सर. हाँ, जैसे अभी मानिकगढ़ सीमेंट जो था, राइट नाउ अल्ट्राटेक हो गया. यस सर. उससे पहले क्या था? मानीगढ़ से सेंचुरी टेक्सटाइल बिरला. हाँ, सेंचुरी टेक्सटाइल का एक यूनिट था, बट इट इज ए मानिकगढ़ सीमेंट, है ना. तो जब आप लोगों को ध्यान हो, मानिकगढ़ सीमेंट को अल्ट्राटेक ग्रुप को देने की बात चल रही थी, तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को क्या कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया. निकाला था? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. है ना. परंतु उसके कंपैरिजन में जितनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को निकाल दिया गया, उतने आसानी से क्या परमानेंट एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया? नो सर. No, sir. नहीं, है ना. मुश्किल है निकालना. मुश्किल है निकालना. तो वही हो गया बेसिक प्रोविजंस और जनरल प्रोविजंस. जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक सेट हैं, बेसिक प्रोविजंस हैं, उसमें चेंजेस करना इतना आसान नहीं है. ठीक है, परंतु यदि जनरल प्रोविजंस हैं, जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उसमें चेंजेस आसानी से किए जा सकते हैं. परंतु सारे चेंजेस होंगे कहां पर? All the changes are to be done in the Parliament of India. ठीक है. सो सीधा हिसाब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में चेंज करने के लिए क्या होगा, कामकाज किसमें होगा? पार्लियामेंट. ठीक है. और ये जो एंटायर प्रोसेस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर नेक्स्ट चैप्टर. सो अभी हम यहाँ पर उस चीज को उतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है. ओके. Okay. ओके सर. So now we are winding up today's session. Rest of the things we'll discuss